لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ خانہ کعبہ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائے جانے والا پہلا گھر ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے برکتوں اور ہدایت کا سامان ہے۔ مسجد حرم کی ایک نماز کا ثواب دیگر مساجد کی نسبت 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ خانہ کعبہ کی سیدھ میں اوپر 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے، جس سے ہر وقت 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک بار طواف کرتا ہے اس کی باری قیامت تک دوبارہ نہیں آتی۔ مکہ اور مدینہ کے حرمین شریفین سے محبت رکھنا اور ان کا احترام کرنا مسلمانوں کا دینی فریضہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا ہے۔ قرآن شریف نے مکہ کو امن والا شہر اور ہدایت کا مرکز قرار دیا ہے۔ دجال اور اس کا فتنہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بہت محبت تھی، اور ہجرت کے وقت غار سور پہ کھڑے ہو کر مکہ کی طرف منہ کر کے انہوں نے فرمایا کہ اگر مجھے مکہ سے نہ نکالا جاتا تو میں کبھی نہ جاتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ میں ہوئی اور ان کا انتقال مدینہ سے ہوا۔ حدود حرم میں کسی جانور کو تکلیف پہنچانا اور درخت اور گھاس کاٹنا منع ہے، چاہے احرام کے حالت میں ہو یا عام لباس میں۔ جب بھی مسلمان حج یا عمرہ کی نیت سے مکہ جائے گا تو اس کے لیے واجب ہے کہ وہ میقات سے پہلے یا میقات پہ نیت کر لے۔ اگر وہ نیت کے بغیر میقات کے اندر داخل ہوا تو اس نے واجب چھوڑ دیا اور دم دینا پڑے گا۔ میقات کے حدود خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ جو لوگ جدہ ایئرپورٹ پہ احرام باندھتے ہیں اور نیت کرتے ہیں ان پہ دم آ جاتا ہے، کیونکہ جدہ میقات کے حدود کے اندر آتا ہے۔ فقہ حنفی میں ہے کہ جب آپ میقات سے باہر جا کے پھر میقات کے اندر آتے ہیں تو عمرہ کرنا لازم ہے۔ حاجی اگر مکہ میں رہتے ہوئے قریب سے ہی دوسرا عمرہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ حدود حرم سے باہر جا کے مسجد عائشہ، مسجد جورانہ یا مسجد حدیبیہ سے بھی عمرہ کی نیت کر سکتا ہے۔ عمرہ کی لغوی معنی ارادہ کرنا اور زیارت کرنا ہے، اور یہ فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن جب ایک بار احرام باندھ کے عمرہ کی نیت کر لی جائے تو عمرہ پورا کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ اور اپنے رب کے لیے حج اور عمرہ کو پورا کرو۔ حج اکبر حج کو بولتے ہیں اور حج اصغر عمرہ کو بولتے ہیں۔ عمرہ کے 2 فرائض ہیں، ایک احرام باندھ کے نیت کرنا اور تلبیہ پڑھتے رہنا، اور دوسرا خانہ کعبہ کا طواف۔ عمرہ کے 2 واجبات ہیں، ایک صفا مروہ کی سعی کرنا اور دوسرا اپنے سر کے بال کٹوانا یا منڈوانا، اور یہی عمرہ کی ترتیب بھی ہے۔ اگر فرض چھوٹ جائے تو عمرہ باطل ہو جاتا ہے، جبکہ اگر واجب چھوٹ جائے تو دم دینا پڑے گا، اور اگر کسی بھی جگہ سنت چھوٹ جائے تو ثواب میں کمی ہوگی، جس کا ازالہ آپ صدقہ اور استغفار سے کر سکتے ہیں۔ اب ہم عمرے کا سفر قدم بقدم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے اپنے جسم کی اچھی طرح صفائی کر کے، غسل کر کے، بدن پر خوشبو لگائے اور سادہ کپڑے پہن کر 2 رکعت صلاۃ سفر پڑھ لے۔ گھر سے رخصتی لے کر فلائٹ سے کم 4 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہنچے اور لگیج کی چیکنگ کروانے کے بعد اس کے اوپر پلاسٹک کور کروائے، پھر اس کے اوپر ٹیگ لگا کر اپنا نام، پتہ اور نمبر لکھ دے، اور لگیج کے اوپر کوئی نشانی لگائے کہ منزل پہ پہنچ کر دور سے آپ کو بیلٹ پہ اپنے بیگ کی نشاندہی ہو۔ بورڈنگ کروانے کے بعد آپ ویٹنگ ایریا میں احرام باندھ دیں۔ کچھ لوگ جدہ پہنچ کر احرام باندھتے ہیں، جو کہ غلط ہے، کیونکہ وہ میقات کے اندر آتا ہے۔ اس لیے اپنے ملک کے ایئرپورٹ میں ہی احرام باندھیں، اور اپنی آسانی کے لیے نیت جہاز کی روانگی کے بعد کر سکتے ہیں، کیونکہ فلائٹ کے ڈیلیز اور کینسلیشن کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ مردوں کے احرام کے 2 سفید چادر ہوتی ہے، جس میں سے ایک کو بطور تہبند باندھ لیں اور دوسری چادر کو کندھوں کے اوپر اوڑھ لیں، اور نیچے والی چادر کو ناف سے اوپر باندھیں کہ سطر ڈھکا رہے۔ خواتین اپنے کپڑوں میں ہی رہے، یہی ان کا احرام ہے، البتہ ان کا لباس باریک اور رنگین نہ ہو اور پراپر سطر والا ہونا چاہیے، اور ان کے ہاتھوں اور چہرے کے علاوہ سارا جسم ڈھانپا ہونا چاہیے۔ خواتین کے چہرہ چھپانے کے لیے سطر والی کیپ ملتی ہے، جو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ احرام پہننے کے بعد اگر مکروہ وقت نہ ہو تو
2 रकात नफल पढ़ लें। ये 2 रकात नफल एहराम बांधने के हैं, ना कि उम्रे की नियत के लिए। नफल के बाद अगर नियत करना चाहते हैं तो भी ठीक है, और अगर जहाज में करते हैं तो भी ठीक है। हज या उम्र के लिए नियत जुबान से अदा करना जरूरी है। उम्र की नियत अरबी में भी कर सकते हैं या अपनी जुबान में भी। फिर मर्द 3 दफा थोड़ी ऊंची आवाज से और औरतें आहिस्ता आवाज से तलबिया पढ़े। 1 दफा तलबिया पढ़ना वाजिब और 3 दफा पढ़ना सुन्नत है। तलबिया के बाद दरूद शरीफ पढ़ के दुआएं मांगे। नफल, नियत और तलबिया के साथ ही आप पर एहराम की पाबंदियां शुरू हो जाती है और हल्क या कसर करवाने तक रहती है। एहराम के मकरूहात और ममनुआत आपको दिखाए जा रहे हैं। जब तक आपने नियत नहीं की होती, आप पर एहराम की पाबंदियां नहीं लगती। आपने पूरे सफर में हिजर अस्वद पहुंचने तक वक्फे वक्फे से तलबिया पढ़ते रहना है। एहराम में आने के बाद आप सर और चेहरा नहीं ढांप सकते और कोई भी जूता पहन सकते हैं, बस टखने नंगे होने चाहिए। जहाज के टेक ऑफ के बाद आप ज्यादा पानी न पिया करें। 6 घंटे के सफर के बाद आप सऊदी अरब पहुंच जाएंगे। आपको इमिग्रेशन के दौरान ताखीर का सामना करना पड़ सकता है, तो जिक्र और फिक्र के साथ सब्र कर लिया करें और अपनी बारी का इंतजार करें। इमिग्रेशन के बाद एयरपोर्ट में ही आप सिम ले लें, क्योंकि हरमैन शरीफैन के बाहर सिम वालों पर रश लगी होती है। एयरपोर्ट से बाहर निकलकर वेटिंग एरिया में आप इंतजामिया वालों को अपना वीजा दिखाएंगे, तो वो आपको रेलेवेंट बस में बिठा देंगे। कभी कभी कंपनी वाले आपसे पासपोर्ट लेते हैं, जो वापसी पे एयरपोर्ट जाते वक्त आपको मिल जाता है, तो परेशान नहीं होना। बस पे चढ़ते ही इंतजामिया वालों को आप होटल वाउचर दिखाएंगे और 2-3 घंटे के सफर के बाद आप जद्दा से मक्का होटल पहुंच जाएंगे। होटल पहुंचकर आपने होटल के कार्ड्स अपने पास रखने हैं और होटल के बाहर से आसपास की वीडियो बनाए ताकि आप गुम ना हो। अपना जरूरी सामान और कैश अपने बड़े बैग में रखें और सिर्फ जरूरत की हद तक कैश अपने पास रखें। सफर के दौरान किसी भी परेशानी की सूरत में होटल वाउचर पे आपके एजेंट्स के नंबर होते हैं, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। अपने रिहाइश पे आने के बाद फ्रेश होके खाना खाएं और अगर मौका हो तो थोड़ा आराम कर लें। फिर कमरे में ही वजू करके अपना जरूरी सामान कमर के पीछे लटकाने वाले बैग में रख के आदाब और एहतराम के साथ एहराम और हरम की पाबंदियों का ख्याल रखते हुए मस्जिद तशरीफ ले जाए और रास्तों को जहन नशीन कर ले। मस्जिद हरम अंदर जाते हुए जूते अपने बैग में रख दें और खाना काबा पर पहली नजर पड़ते ही अपने लिए बहुत सारी दुआएं मांगे। फिर आप हिजर अस्वद के सामने आए, जिसकी 2 निशानियां हैं। एक ये कि खाना काबा के जिस कोने में हिजर अस्वद नस्ब है, उसके ऊपर गिलाफ काबा पर ये डिजाइन बना हुआ है, और दूसरा ये कि हिजर अस्वद वाले कोने के सामने ग्रीन लाइट्स लगी है। हिजर अस्वद के सामने आते ही तलबिया बंद कर दे और मर्द अपना दाया कंधा खोल के इस्तिबा कर ले, जो कि तवाफ के सुन्नत में से है। हिजर अस्वद के सामने आके तवाफ की नियत करें। नियत आप अपनी जुबान में भी कर सकते हैं और फिर हिजर अस्वद की तरफ तकबीर तहरीमा की तरह हाथ उठाकर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द पढ़े और तवाफ शुरू करें। तवाफ की नियत से पहले और बाद में खाना काबा को देखने से 20 रहमतों का सवाब मिलता है, लेकिन नियत के बाद खाना काबा को देखते हुए तवाफ करने की पाबंदी है। तवाफ के पहले 3 चक्करों में मर्द रमल करें, यानी अकड़ अकड़ कर तेज कदमों के साथ चलना, ये सुन्नत है। और तवाफ करते हुए आप कोई भी जिक्र या दुआएं पढ़ सकते हैं। रुकनी यमानी से हिजर अस्वद तक ये दुआ पढ़ना सुन्नत है, और अगर मुमकिन हो तो रुकनी यमानी को छू के गुजरे, लेकिन अगर रश की वजह से छूना मुमकिन ना हो तो सीधा जाते रहें और इशारा करके इस्तिलाम भी नहीं करना। एक तवाफ के 7 चक्कर और 8 इस्तिलाम होते हैं और हर चक्कर हिजर अस्वद से शुरू होता है और उसी पर पूरा होता है। एक चक्कर पूरा करने पर हिजर अस्वद पहुंचकर दोबारा इस्तिलाम करें और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के दूसरा चक्कर पूरा करते जाएं, और इसी तरह 8वें इस्तिलाम के बाद दाया कंधा डांप लें और इस्तिबा खत्म करें। तवाफ के दौरान आप कोई भी दुआ पढ़ सकते हैं या जिक्र कर सकते हैं, और अगर दौरान तवाफ नमाज आ जाए तो आप पढ़ सकते हैं। जहां से तवाफ रोका था वहां से दोबारा शुरू करें। तवाफ के दौरान अपनी नजरों की हिफाजत करें और खवातीन से गुजारिश है कि भीड़ से दूर रह के तवाफ करें, क्योंकि नामहरम के साथ टचिंग तवाफ में भी हराम है। फिर ऐसी जगह 2 रकात वाजिबुल तवाफ पढ़े कि मकाम इब्राहिम आपके और खाना काबा के दरमियान हो। अगर रश की वजह से जगह न मिले तो किसी भी जगह पढ़ लें। नफल पढ़ने के बाद किबला रुख होके बिस्मिल्लाह पढ़ के सीधे हाथ से 3 सांसों में
पेट भर कर आबे जमजम पी ले और अपने सर पर भी डाल दे और ये दुआ मांगे। आबे जमजम पीने के बाद सही करने से पहले एक बार फिर हिजरा अस्वद का इस्तेलाम कर ले और ऐसे ये आपका 9वां इस्तेलाम हो जाता है। ये इस्तेलाम सुन्नत है। फिर सफा पहाड़ी की तरफ ये दुआ पढ़ते हुए जाए और सफा पहाड़ पे खाना काबा की तरफ मुंह करके सही की नियत कर ले और इस तरतीब से अपने लिए और पूरी उम्मत के लिए दुआएं मांगे। फिर सफा से मरवा की तरफ चलकर सही शुरू करें। सही में आप कोई भी दुआ पढ़ सकते हैं या जिक्र कर सकते हैं। सही में सफा और मरवा पहाड़ियों के दरमियान 7 चक्कर इस तरीके से लगाने हैं कि सफा से मरवा पहुंचकर एक चक्कर होता है, फिर मरवा से सफा दूसरा, फिर सफा से मरवा तीसरा और इस तरह आपका 7वां चक्कर मरवा पे खत्म हो जाता है और आपके उम्रे का पहला वाजिब पूरा हो जाता है। सही के दौरान मर्द मिलेन अहजरैन पर दौड़कर जाएंगे, जिसकी निशानी यह है कि वहाँ ग्रीन लाइट्स लगी है और दौड़ते हुए ये दुआ पढ़ें और इस जगह पर औरतें नहीं दौड़ेंगी। हर दफा आपने सफा और मरवा पहाड़ी पर पहुंचकर इस तरतीब से दुआ करनी है। सही करते हुए सफा और मरवा पहाड़ी पर खाना काबा की तरफ मुंह करके इस्तेलाम नहीं करना और तकबीर नहीं पढ़ना। सफा मरवा के सही के बाद आपने उम्रे का दूसरा वाजिब यानी हल्क या कसर करवाना है, मतलब के सर के बाल कटवाने या मुंडवाने हैं। सर मुंडवाना अफजल है और औरतों ने सिर्फ उंगली की एक पोर या 1 इंच बराबर चटियां पकड़कर कटवाना है। हल्क या कसर करवाने के साथ ही आपका उम्रा मुकम्मल हो जाता है और आपकी इहराम की पाबंदियां खत्म हो जाती है। याद रहे, हल्क या कसर हदूद हरम के अंदर कराना लाजमी है, नहीं तो दम आ जाएगा। इसके बाद 2 रकात शुक्राने के आप मरवा पहाड़ी के अलावा मस्जिद हरम के किसी भी जगह पढ़ सकते हैं और ये 2 रकात नफल उम्रे का हिस्सा नहीं, बस शुक्राने के हैं। उम्रा करने के बाद आपने मक्का मुकर्रमा में रहते हुए ज्यादा से ज्यादा तवाफ करने हैं, जिक्र व अस्कार के साथ साथ तिलावत कुरान भी करनी है और सारी नमाजें मस्जिद हरम में बाजुमात अदा करनी है। अगर आप दूसरा उम्रा करना चाहते हैं तो किसी भी मीकात पे जाके या हदूद हरम से बाहर जाके उम्रा की उसी तरतीब को दोहराना है, यानी गुस्ल, वजू, एहराम, नफल, नियत, तलबिया, तवाफ, वाजिबुल तवाफ, आबे जमजम, 9वां इस्तेलाम, सफा मरवा की सही और हल्क या कसर करके एहराम खोल दे और अगर बाल ना भी हो सर पे फिर भी उस तरह फेर दे। मक्का में रहते हुए हर पल को गनीमत समझें। सारे नमाज बाजमात मस्जिद हरम में पढ़ें। 50 नफल तवाफ पूरा करने की कोशिश करें। आँख, कान और जुबान के हर किस्म के गुनाहों से बचें। मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम करें। बाजारों में वक्त जाया न करें। लड़ाई झगड़ों से दूर रहे और मक्का मुकर्रमा की बेअदबी से बचें। जब भी आपका सफर मक्का खत्म होने को हो तो आपने आखिरी तवाफ की नियत अलविदाई तवाफ के करने हैं, जिसको तवाफ विदा कहते हैं। मक्का मुकर्रमा में उम्रे के बाद आप मस्जिद नबवी में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलाम पेश करने के बाद वापसी करेंगे। वापसी पे आपको एयरलाइन की तरफ से जो टोटल वेट अलाउड होता है उसके आपने 2 लगेज बनाने हैं। सारा वेट एक लगेज में नहीं डालना और हाथ वाले बैग का वजन आपका अलग काउंट होता है। और उसी तरह वापसी पे अपने बैग्स की निशानदेही करनी है, खासकर आबे जमजम के बोतल्स के और खजूर के पैकेजेस की, क्योंकि वो सब एक जैसे होते हैं।